ہوگا کہ آپ کی نظر میں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے اس کی کتنی اہمیت سمجھتے ہیں آپ، یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم قرآن پاک حفظ کر لیا یہی ہمارے لیے کافی ہے؟ اول تو سب سے پہلے قرآن پاک دین کا کام کرنا ہمارے لیے افضل ہے کہ جی اسکول کی تعلیمات حاصل کر کے آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کافی لوگ سڑکوں پر پھر رہے ہیں تو تعلیم پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں تو ہے۔ پھر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس ہم قرآن پاک حفظ کر لیں یا باقی تعلیم حاصل کر لیں یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ پھر وہ قبر میں بھی جا کر کام آئے گی، دنیا میں بھی رہتے ہوئے بھی۔ ویسے ہمارا دنیا سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی یہ دنیا جہاں پر چاند پہ پہنچ گئی ہے، جدھر چلی گئی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے؟ نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں۔ دنیاوی ترقی سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا بے شک جہاں پر دنیا چاہے جہاں مرضی پہنچے، ہمیں دین سے غرض ہے، دنیا سے نہیں۔ آپ بھی ایسی آپ کی بھی یہی سوچ ہے؟ جیسے جی الحمدللہ یہی سب۔ آپ بھی ایسی؟ الحمدللہ۔ آپ بالکل بات ہے کہ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ جدید علوم بھی سیکھیں، آپ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دیگر جو اس طرح کے علوم ہیں وہ بھی سیکھنے چاہیے یا نہیں سیکھنے چاہیے؟ میں اس کو اپنے لیے ذلت سمجھوں یا عزت کہ اللہ رب العزت نے مجھے قبول کیا ہے یا نہیں، قرآن کے ساتھ جڑے، دین کے ساتھ جڑے رہنے سے ہی برکت ہے، میں تو یہی کہوں گا۔ کفار جب قید ہو کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کام لیا کرتے تھے، جس کو جو زبان آتی تھی وہ صحابہ سیکھتے تھے۔ دیکھیں وہ اب کفار سے اگر تعلیم حاصل کرے تو وہ بھی دین کی تعلیم تو نہیں ہوگی نا۔ جے ہند دوستوں، سواگت ہے ایک اور ویڈیو میں ہوں سیلیس۔ دوستوں، پاکستان کے مدرسہ اسٹوڈنٹس کی باتیں سن کر آپ چونک جائیں گے، بالکل چونک جائیں گے۔ کون سے زمانے میں یہ لوگ جی رہے ہیں یہ سوچنے پہ آپ مجبور ہو جائیں گے۔ تو چلیے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو جو ہے وہ پرفیکٹ ریئیکشن کا ویڈیو ہے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اب میں تینوں سے پوچھوں گا کہ آپ کی نظر میں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے اس کی کتنی اہمیت سمجھتے ہیں آپ، یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم قرآن پاک حفظ کر لیا یہی ہمارے لیے کافی ہے؟ اول تو سب سے پہلے قرآن پاک دین کا کام کرنا ہمارے لیے افضل ہے، اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی دور کے حساب کے ساتھ یہ بھی سیکھنے کا ایک فرض ہے، لیکن سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ دین کا کام ہمارے لیے اہم ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اچھا، ہمارے جو ملک ترقی کرتا ہے وہ دیکھیں دینی تعلیم حاصل ہم اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ملک ہے نا اس کی ترقی کے لیے جو ہمیں جو ہے جو جدید علوم ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے، تبھی ہمارا ملک ترقی کرے گا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ تو اس حوالے سے آپ کریں گے قرآن پاک حفظ کر کے آگے پڑھیں گے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور، اگر موقع ملا تو ضرور کریں گے، سائنس کے حوالے سے بھی کریں گے اور جو بھی ہمارے آگے کام ہے وہ ضرور کریں گے۔ تو ترقی آپ سمجھتے ہیں کہ ترقی کرنے کے لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ضروری ہے یا نہیں؟ بس ایسا بتائیں۔ دیکھیں جی اسکول کی تعلیمات حاصل کر کے آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کافی لوگ سڑکوں پر پھر رہے ہیں، انجینئر ہیں، انجینئر ہے، جو بھی ہے وہ سڑکوں پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا اگر ان کو نوکری ہی نہ ملے؟ ان کو اگر انہوں نے محنت کی ہے پیچھے تو ان کو پھل بھی آگے ملنا چاہیے، یہ میری عوام سے درخواست ہے۔ تو اب اس کے لیے تعلیم کا ضروری ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ مطلب دیکھیں وہ آگے اس کو اپرچونٹی نہیں ملتی یا کوئی اس طرح پرابلم ہے وہ تو تعلیم کا ضروری ہونا تو اسی وقت ہوگا جب آگے جا کر نوکریاں ملیں گی، اگر اس کی نوکریاں نہ ملی تو تعلیم پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس ہم قرآن پاک حفظ کر لیں یا باقی تعلیم حاصل کر لیں یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ پھر وہ قبر میں بھی جا کر کام آئے گی، دنیا میں بھی رہتے ہوئے بھی، وہ بھی ایک جگہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی آگے جا کر نوکری ملے تو وہ بہتر ہے، یہ میں کہوں گا کہ اس کی نوکری بھی چاہیے۔ اچھا، آپ بھی ٹیچر ہیں، آپ سے بھی تھوڑی سی آپ نے منع کیا تھا مجھ سے بات نہ کیجیے گا لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا۔ آپ بھی ٹیچر ہیں، آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں ذرا بتائیے گا؟ میں 5 پڑھا ہوں اسکول 5 پڑھے ہوئے ہیں؟ اچھا اور حفظ کیا ہے۔ اچھا، بس۔ اب بچوں کو پڑھا رہے ہیں آپ آگے؟ جی 2 سالہ کورس بھی کر رہا ہوں میں، اچھا۔ دراصات کا۔ آپ کی نظر میں تعلیم کی اہمیت ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اور بھی پڑھنا چاہیے تھا، یا آپ مطمئن ہے کہ بس ٹھیک ہے جو میں نے پڑھ لیا ہے وہ کافی ہے؟ اب تو پڑھانے لگ گئے ہیں، اب تو موقع نہیں ہے ہمارے پاس، پہلے ہوتا تو شاید پڑھ لیتے۔ تو ویسے ہمارا دنیا سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی یہ دنیا جہاں پر چاند پہ پہنچ گئی ہے، جدھر چلی گئی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے؟ نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہم مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، کتنی یہ جو آپ پڑھاتے ہیں آپ کو کتنی وظیفہ کتنا ملتا ہے؟ میرا
शुरुआत में 3 माह मेरा ख्याल 12,000 था, जी। अब 15 हैं। अच्छा, बस। तो 15,000 में आपकी कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, आपका गुजारा हो जाएगा? अल्लाह करने वाला है गुजारा। बरक़ात अगर 15,000 में हो तो 15,000 में भी हो जाता है, अगर बरकत ना हो तो लाख में भी नहीं होता। आपका कितना वजीफ़ा है जी? हमारा भी इन्हीं के करीब है। करीब है। आप मुतमिन हैं अपने वजीफ़े से? 15,000 काफ़ी है या ज़्यादा होने चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बड़ों के साथ जोड़ा हुआ, दीनदार लोगों के साथ, अल्लाह पाक उनकी बरकत से हमें और भी देगा इंशाल्लाह। यानी ये आप जो भी आपको मिल रहा है आप उससे मुतमिन है, आपको दुनियावी तरक्की से आपको कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया बेशक जहाँ पर चांद पे पहुंचा जाए, दुनिया चाहे जहाँ मर्जी पहुंचे, हमें दीन से गर्ज है, दुनिया से नहीं। आप भी आपकी भी यही सोच है? जैसे जी अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच। आप भी ऐसे ही? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल खुश हैं, मुतमिन है? हमारे उस्ताद हैं, 35 साल हो गए उनको कुरान पढ़ाते, अब आके उनकी 20,000 तनख्वाह हुई है इस साल। कितने बच्चे हैं उनके? उनके बच्चे तो मेरा ख्याल, बच्चों का तो पता नहीं है, लेकिन जो जितने बच्चों को पढ़ाते हैं 300 बच्चे एक क्लास सिर्फ एक उस्ताद के पास हैं। 300 बच्चा एक उस्ताद के पास है। 300 बच्चों को वो पढ़ाते हैं और 20,000 सैलरी है उनकी, वजीफा उनका जो। भी गुजारा हो रहा है, और मेरा ख्याल उनकी उम्र 55 से ऊपर है। उनका अगर 20 में हो रहा है 55 की उम्र में, हमारी 20 साल उम्र है और 15 में गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत वैसे गुजारा वैसे आपस की बात है कि इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि आप जदीद उलूम भी सीखें, आप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दीगर जो इस तरह के उलूम है वो भी सीखने चाहिए या नहीं सीखने चाहिए? मैंने आपसे पहले भी कहा सीखने चाहिए, लेकिन आगे जाकर इसकी नौकरी ना मिले तो दुख होता है फिर, क्योंकि हम कुरान पढ़ के पढ़ाना अल्लाह पाक ने जहाँ पर जगह दी है वो ठीक है, लेकिन दुनिया सीख कर आगे जगह ना मिले फिर और दुख होता है कि जी हमने इतनी मेहनत की, 40 साल लगाए, 20 साल लगाए, आगे नौकरी ना मिले तो फिर बहुत। जो लोग जो गाड़ियों में फिरते हैं या इस तरह बड़े ऐशो इशरत करते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां हासिल करते हैं, तो आपके दिल में ख्याल नहीं आता कि आप लोग भी तरक्की करें, या आप बिल्कुल मुतमिन है ऐसी ज़िंदगी से अपनी से? नहीं अच्छा लगता आपको? बस यही ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही ठीक है। आप भी मुतमिन है ऐसे ही? बिल्कुल। मैं बार बार ये सवाल करता हूँ, मेरे लिए हैरत की वजह है ना कि दुनिया सारे लोग देखते हैं ना कि मैं जिंदा मिसाल देता हूँ, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू, वो एक दिन कहते, क्या नाम कहते, मैं इसको अपने लिए जिल्लत समझूं या इज्जत, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कबूल किया है या नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे गाड़ियाँ दी, मुझे तो गाड़ियों के नाम भी नहीं आते, और लोग मेरी इतनी वाह वाह करते हैं, अल्लाह पाक ने पता नहीं मुझे कबूलियत दी है या लोगों के सामने जिल्लत दी है। अल्लाह पाक कहते हैं मुझे बस कबूल कर ले, गाड़ियों का मुझे कोई शौक़ नहीं है। और आप उनकी सादगी आप भी देखते हैं, आवाम भी देखती है कि क्या सादगी है उनकी, सादा से कपड़े हैं और सादा सी टोपी, बस। हमें कोई शौक़ नहीं है दुनिया से, दीन से। मुफ्ती तकी उस्मानी तक पहुँचने के लिए हर बंदा नहीं पहुँच सकता वहाँ पर, तो आप तो अभी यानी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते जहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं। मैं तो आप लोगों की बात कर रहा हूँ ना कि आप लोग तो ये 10-20, जैसे आप बता रहे हैं कि 35 साल हो गए हैं, उनकी 20,000 सैलरी है, तो मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि ये इतनी कम सैलरी में कैसे वो गुजारा करते होंगे? जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत रखी हो उसमें सब कुछ मिल जाता है। दुनिया में अगर वो कमाने भी लग गया 2 लाख में भी अगर उसका गुजारा ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें बरकत ही नहीं है। कुरान के साथ जुड़े, दीन के साथ जुड़े रहने से ही बरकत है, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि दुनिया के साथ आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, अक्सर लोग, बड़े बड़े लोग सड़कों पर मज़दूरों की तरह काम करते हैं, उसका क्या फ़ायदा? आप मुझे बताएं। जी, आपकी एक अपनी सोच है, अपनी थिंकिंग है, लेकिन आपको बताने के लिए मैं कहता हूँ कि हमें जो है दीनी तालीम, देखें वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी के लिए है, लेकिन हमें दुनियावी तालीम हासिल करने का भी ज़रूर करना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि इल्म हासिल कर लो, ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। देखिए उस वक्त चीन जो था कोई इस्लामी मुल्क तो नहीं था, तो यही था कि वो दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो हमें अपने आप को जो है दीनी तालीम तक महदूद नहीं करना चाहिए, हमें जो लेटेस्ट जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तालीम है वो भी हासिल करनी चाहिए। और अपने मुल्क, उस टाइम स्कूल है ही नहीं थे जी, तो उधर उस टाइम तो दीन की तालीम थी ना बस। नहीं तो दीन की तालीम उस वक्त चीन में तो नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? अब पूरी दुनिया में सहाबा गए हैं। अच्छा, नहीं तालीम अगर वो एक दीन मिसाल के नहीं तौर पे तालीम अगर दीन की लेनी होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वो उनको देनी थी।
चीन का नहीं बोलना था कि आप दीन की तालीम के लिए आप चीन में वहाँ पर जाएं, मेरा ख्याल। ये हदीस मेरे इल्म में नहीं है फिल वक्त। आपके इल्म में है हदीस ये? है ही नहीं, मैं तो यही कहूँगा, ना ही पढ़ी है मैंने। 8 साल 6 साल जहाँ भी लगाए कोई हदीस नहीं है पढ़ी। आप सल्लम ने सहाबा को ज़रूर भेजा था दूसरे ममालिक के अंदर, वो भी दीन का काम करने के लिए। लोग कुफ़ार जब कैद होकर आते थे, आप सल्लम उनसे काम लिया करते थे, जिसको जो ज़ुबान आती थी वो सहाबा सीखते थे। देखें वो अब कुफार से अगर तालीम हासिल करे थे, वो भी दीन की तालीम तो नहीं होगी ना। वो इस वजह से हासिल की, इसकी मैं वजह भी आपके सामने बयान करूंगा। वो इस वजह से कि दूसरे ममालिक के अंदर जाकर अरबी को समझाना मुश्किल था, इसलिए सिर्फ उनकी खातिर वो ज़ुबान सीखी और उनको दीन की तबलीग देने के लिए सीखी, बस। इसके अलावा कोई दुनियावी गर्ज से नहीं सीखी गई। जी, आपका अपना एक सोच है आपकी, और हमारी एक अपनी सोच है। हम ये चाहते हैं कि आप भी जो है दीनी तालीम ज़रूर हासिल करें, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं, ना ही कोई, हम बल्कि खुश हैं। मेरे 2 भतीजे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, और लेकिन मैं उनके साथ उनको जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम ज़रूर दिलवाऊंगा, ताकि वो अपनी दीनी तालीम के साथ साथ वो जो जदीद तालीम है वो भी हासिल कर सके। तो देखा आपने कैसी सोच है इनकी। ऐसा लग रहा है कि 1000 1500 100 साल पहले की ही सोच है अभी। भाई साइंस और टेक्नोलॉजी से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। दुनिया भले ही चांद पे चली जाए, सूरज पे चली जाए, कहीं भी चली जाए, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो सिर्फ दीन से मतलब है, ठीक है। कोई साइंस टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं है। सिर्फ हम दीन पढ़े हैं और दीन पढ़ाएंगे। आगे दुनियादारी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे, लिखेंगे, साइंस सीखेंगे, समझेंगे, तभी जो है तरक्की करेंगे ना। पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम यही है। जो 90% जो लोग हैं ना, वो सिर्फ दीन के चक्कर में ही रहते हैं। सिर्फ दीनी तालीम ही, क्योंकि मुल्ला मौलवी पढ़ाते ही यही हैं कि दीनी तालीम लो। भाई वो लोग दीनी तालीम ही सिर्फ लेंगे, दुनियादारी की तालीम लेंगे नहीं तो पाकिस्तान बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा ही नहीं ना। उनका ब्रेन तो सिर्फ उतने ही दूर में रहेगा। और फिर मुल्ला मौलवी जैसे जैसे उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, ये लोग इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि ब्रेन तो विकसित हुआ नहीं है, वो उतने ही दूर में है। क्लियर कट बोल रहे हैं ये लोग कि भाई हमें किसी साइंस टेक्नोलॉजी से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ दीन से लेना देना है, हम तो सिर्फ दीन को जानते हैं। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, आप बताइएगा कमेंट्स करके कि आप क्या सोचते हैं।